first thing we have to do is add human body detection. Okay, so now here if you everyone open the new file? Sure. Okay, so now this is like, see, in this extension basically you would be able to see some two or three different categories. So first is human body detection. Okay, so basically when we talk about human body, so it helps you to detect a complete human body as well. Like if you keep your camera a little far, not exact very far, okay, so it will be detecting your eyes, your nose, 2 ears, your mouth, your shoulders, your legs, like that. You can test that as well, but not right now. The next is pose detection. Okay, so basically, yeah, I should say human body is a part of pose detection only. In human body extension, we have one pose detection and one is hand detection. Can anyone tell me the difference between both of them? Can anyone tell me a difference between a human body detection, human pose, hand pose and human pose? Okay. Okay. Others? Okay, correct. Yeah. So yeah, both of them are very correct. So basically pose is complete body. But when we talk about hand pose, that is we are going to have somewhere around 4 fingers or a wrist. Okay. So today we are going to work with hand detection. An important mistake which you might can make is, see, we have two different analyze buttons here which look very same. So make sure what you want an output, you are using the analyze blocks according to that. We have analyzed image for hand from the camera. We have analyzed image from human pose from camera. Both the symbols are same. So do not make a mistake on that. This is very important. Okay. So today we are going to work with hand detection. Now the part comes up is we are going to make an activity which will give us an output of how many fingers we are showing. Okay? So if we show like this, it would be 5, 4, 3, 2 and 1 like that. Okay? So now just with your brain, okay? So how many fingers are this? 5, now 4, right? Generally we play this game with our siblings and all when they are very young, right? So now, but have you ever thought how we are able to detect this is what, this is what? Like if I say this, how you are able to count? Absence of the other. Absence of other. Sorry? The absence of the other. Absence of the other 4, okay? We are trained to count, okay? Separation between two fingers, yeah. Okay, the separation between 2 fingers, we can take that. If you think a little bit more, yeah, images fitted. So basically, somewhere we have trained ourselves that this is an open. Have you ever thought if it would have been just opposite? If I would have said how many fingers? So you would have counted these fingers which are inside my hand. This is also possible, right? From like childhood, if I train you like this, you are going to count it like this, right? So this is as per the training what we have got. So as per the understanding, so sorry, actually
I was saying to you, yeah, you were counting like this. So I thought I'm saying something is what he is counting. Okay, so now I was saying, so what happens exactly here is when you say like open your finger like this, right? So if you see we have how many blocks here? 3 blocks. So if I count point wise, like just give a point from top 1, 2, 3 and 4 points. So we can consider our fingers have 4 points. So now if I say how many fingers do you see? Half. Right. But we don't count half, right? So now why? Still my finger is up. But what you are counting here is, you are counting the upper 2 parts. Do you all agree? Because even if I will do like this, so you can see this is up only, right? So you will say, sir, this is like 4.5, right? But not, right? You are just counting the top, but this is correct. Means we don't know. Means in another world, somewhere they might be counting this way. But for us, for I should say the people in earth, till I know, this is correct. Okay. So now somewhere if you understand the concept, we have 4 points, right? And we are counting the top 2. Do we all agree? I have given you the counter points as well, right? If I do this, why am I not counting these? So somewhere you are counting with the top one and the second one, right? Now similarly, I want you all to bring on the first block, that is switch on the camera. Okay. Separately drag this block, that is analyze image from the hand. Don't click. Okay, just separately put it out like this. Keep this block separately and this block separately. Click on the first block. Show your hand in front of it and ask your friend to press the second block here. And now you can remove your hand. Ma'am, no finger. Show your full hand. 2 blocks से अगर finger count होती तो फिर activity किसकी होती? Is it showing anything? Yeah. So for everyone it is showing. किसी का जिसका हाथ नहीं show कर रहा है? Is it showing? So how many points in each finger it is? Do we all agree we have 4 fingers? Sorry, 4 points in each finger, sorry. Actually we have 4 fingers only, we have 1 thumb. Is it working for you? Let's analyze it above. So now can you, is it possible for you to count how many fingers in your PC it is showing right now? For as of now we are not playing in the game, so all are fingers for us, okay? 5? For everyone it is showing 5? Not showing 5? Okay, so again, see, this is very important and trust me, your students are going to like make you run behind them for this. This is going to give you the same icon as above. Okay.
This is also having the same icon. The only difference is of a single word. ऊपर human pose लिखा है, यहाँ पे hand लिखा हुआ है, right? Okay. So now I won't take much more time. Let me see. Okay. Now quickly, if I say you that if you see here, we are able to find the hand. Now, as I told you, can count with the pointers. So we have to develop an activity or a logic which helps me to count the points, right? So now we will be working on that. First, I want you all to see what am I doing. So as we know that we are going to make a function, right? So what should I do first? Let me first bring the mouse here. And just a second. So this is my first block, and first thing I want is I want to turn on the camera. Okay. Now what is my main motive? To count the fingers, right? So let's make a block named count the fingers. So now here comes that how many parameters we would be required. So if we want to make a function which should give me at last the final number of fingers I am showing, what would be the max fingers? 5. Do we all agree? So I will be giving 5 places with all the names, and now you have to be with me, otherwise the logic you would be doing same, but there would be like set of commands. So आप उसको ऊपर नीचे कर दोगे, it will work good, but if in case not work good, it will be very hectic to find where is the problem. Okay, so we are going to follow same pattern. First is thumb, second is index, third is middle finger, ring finger, pinky finger, right? Okay, so let's write it that way. The name of the function we are going to give is count fingers. First is thumb, right? So I'll add one more. The second is index. The third is middle. The fourth is ring. The fifth is pinky. So I am going to make this function, and basically somewhere I will call this function as. So initially what should I give? Initially what should be the number? 0. It can be even, we can sometimes think that we should keep 5. because मैं तो सीधा यहाँ से दिखाऊंगा, but still when you are calling a function you never know कि you will be showing your hand or not, right? So first thing you will be starting with 0 0 0 0. Okay. Now the next is basically what I want to see. So I want that it show me the detection, correct? In the screen. Now what I have to do is I have to write a logic basically, okay? So now I would be making 5 different, you can say, functions, okay? Basically you can say logic for counting every finger, like
how can I count this is index finger? So we have to write the logic for that. Okay? So now we'll be making functions first and then we'll be writing the logic under them. So first let's write the, you can say, logic for thumb. Okay? So what I'll do is I'll go and make a function count thumb. Now the thing comes up that how many input we should give, right? So this might be a little discussion part that we have one thumb, right? So we should give only one input or one variable. But the main, what is our main motive? To find the final counting of the fingers, right? So there is a possibility that when you are showing like this, okay? So what we have to do is we would be giving 5 parameters. Why? Initially we have started with 0, 0, 0, 0, 0. Every time, as someone mentioned this actually, I just could not find that when I showed this, so someone said this is, we can say this is one index finger because others are closed. Who said? Can you please raise your hand? Someone said this, right? Because other 4 are closed, this is one finger, right? So this is the concept we are going to use. So even if we want to count the thumb, we would also parallelly count what is the status of other 4 fingers. Okay, so that at the end, together when I compile the data, तो भाई थंब वाले से कितना आया कि एक थंब है उसका, इंडेक्स वाले से कितना है भाई उसके पास एक इंडेक्स है, इसके पास कितना आया, तो टुगेदर विल मेक अ लाइक मुनी विल फाइंड अ आउटपुट की टोटल कितनी फिंगर है. ठीक है, क्लियर है? डाउट तो नहीं है कुछ अभी है तो पूछो, विल डिस्कस. शैल वी मूव अहेड? पक्का? ओके. सो नाउ अगेन काउंट थंब में आपको कितने पैरामीटर्स देने हैं? 5. थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, पिंकी. आई थिंक एक चीज़ है कि वी हैव टू, मेरे से लाइक लास्ट वाले जो मैंने वो बनाया है फंक्शन, उसमें मैंने इनपुट टेक्स्ट ले लिया है. ओके, सो आई डिलीट दैट बिकॉज वी वुड बी रिक्वायरिंग ऑल द इनपुट एज इन numbers only, right? Because at the last we are counting. So what I'll do is I'll delete this. I'll also delete this. Okay. ऐसा क्या? ओके, इनपुट ये कर दो सबका. Who gave this idea? एक बार डिलीट करके नया फंक्शन में आता, 5 बार डिलीट करके 5 नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी अभी. राइट? एक बार डिलीट करते पूरा फंक्शन डिलीट, नया बनाता 5 बार बनाता, 5 चीजें डिलीट करूंगा फिर 5 चीजें लिखूंगा. चलो ठीक है, बट वी हैव गॉट अ न्यू आइडिया. वी शुड नो व्हाट आर द वेज.
you a logic for one part, okay? The others you would be developing, or a two, maximum two के लिए मैं दिखाऊंगा. Others you have to do because it's like repeated वाला चीज, okay? Even you don't have to change anything. So means हाँ, of course like parameters change करने होंगे, but logic is going to be same. Now see, what is our first function? Count finger. What is our this count thumb? तो what we are going to do, पहले तो इसको इधर लगा देंगे, ठीक है? और इसको इनिशियली क्या करेंगे, हम इसमें सारे के सारे जो पैरामीटर है वो पास करेंगे. एक सेकंड. हाँ, कि क्योंकि दिस इज गोइंग टू समवेयर गिव मी द टोटल, राइट? So these are basically the variables. Do you all agree? तो ये ऑटो अपडेट होंगे अंदर में जब ये फंक्शन रन होगा. तो Do you all agree? कहीं ना कहीं इसमें मैं जो लॉजिक लिखूंगा, इससे जो आउटपुट आएगा वो किस में सेव होगा? इन्हीं वेरिएबल्स में. इन वेरिएबल्स को मैं ऊपर रखूंगा. सिमिलरली ऐसे मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे, सबका टोटल आखिरी में मुझे करना है, यही करना है, राइट? So now I would be writing a logic for thumb. ये how we can count the thumb. What logic did we understood till now? कि how exactly it works? First तो लगेगा logic है तो if लगेगा, ये क्या होता है? I think internet is not working but still okay. Okay, so we are going to use if condition. This is for sure, right? We are going to use so many if. The first is we have a block which helps me to get the positions of, I can get x position and y position of top, middle, middle two and bottom. Did you got idea what it is? It is going to give you the coordinate of top, middle one, middle two and bottom. Top, middle one, middle two and bottom. Have you all understood? पक्का? ये थंब का है. सिमिलरली आप सारे फिंगर्स का कर सकते हो. ओके? डू वी ऑल एग्री? यस? कंफर्म? कोई डाउट है तो पूछो. कंफर्म? शैल वी मूव अहेड? हाँ, अब वो इट वुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स लाइक आपको वो बनाया है ना आपने, हम जो ऐसे निकाला है तो उसमें आप देखना 4 पॉइंट दिख जाएंगे. तो समवेयर वो 4 पॉइंट यहाँ पे ही है. ओके? So you for thumb how exactly the 4 is working, you can look into the analyze image. You would be able to find the 4th point as well there. Okay? Now अब मुझे ये बताओ, इसको अगर काउंट करना है तो आप मुझे बताओ y एक्सिस में चीजें चेक करोगे कि x एक्सिस में? कंफर्म? बस हो गया, बन गया प्रोग्राम. तो हमें बस y पोजीशन हर किसी पॉइंट्स की चेक करनी है. इसको इससे कंपेयर करना है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है. अगर ये बड़ा है तो मतलब ये नीचे है, ऊपर वाला पार्ट. आर यू गेटिंग? अगर ये पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है, हमें दूसरा हाथ में कैसे पकड़ूं भाई? ओके, तो सी इफ इन केस ये पॉइंट की वैल्यू ये पॉइंट से ज़्यादा है तो ये फिंगर स्टैंड है. ऐसे करूँगा तो ये पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट से कम होगी तो ये वैल्यू डाउन है. बस इतनी सी लॉजिक है. मल्टीपल चीज़ों में हर फिंगर में ही यही लॉजिक चलेगी. ऐसे करके देखो, अभी कौन सा सबकी, अगर मैं पूरे फिंगर्स रखूं तो सबके y एक्सिस में जो सबसे टॉप वाला है, राइट? मिडिल. हाँ, टॉप वाली जो पॉइंट है वो सबसे हाइट में है, राइट? और अगर मैं क्लोज करूंगा तो सबसे लो भी वही जाएगा. जो
स्टेगनेंट है, मतलब ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, वो मिडिल वाला है। बस उसी से कंपेयर करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। नाउ यू हैव टू सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो y पोजीशन फॉर टॉप थंब, अच्छा सॉरी, वी विल लाइक कंपैरिजन करना है तो वी नीड ऑपरेटर्स। तो ये दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है बताओ अभी। आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस, इज इट ग्रेटर देन, ओके। एक चीज अच्छा है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टोल्ड यू अबाउट कि इसको आप काउंट कर रहे हो तो y एक्सिस में कर रहे हो, बट हमको तो आप x एक्सिस में काउंट करोगे ना, राइट? हमको आप x एक्सिस में काउंट करोगे, ठीक है? तो जनरली वी स्टार्ट विद लाइक इंडेक्स फिंगर, बट मैंने थंब से किया। अच्छा है, लाइक वी आर नाउ एबल टू सी द वेरिएशंस कि 4 फिंगर्स जो है वो y में चलेंगी और एक फिंगर, एक जो थंब है वो x में चलेगा। तो x for top of thumb is greater than, किससे कंपेयर करूं मैं इसको? x से ही कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? कि y से करना पड़ेगा? इसमें बॉटम से करेंगे। सी लॉजिक समझना, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसे घूम रही है चीजें। फॉर थंब है, ये स्पेशल है इसीलिए सबसे पहले ले रहे, बाकी सब में ये कंपैरिजन है, राइट? लेकिन जो आपके थंब का कंपैरिजन है वो कैसे हो रहा है पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर से डिस्कस करेंगे। तो एक्स पोजीशन ऑफ द बॉटम इंडेक्स फिंगर, आपको पहले ये बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो मेरे पास और भी तरीके हैं। अभी दिख रहा है हल्का हल्का, अच्छे से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी भी? अरे हाँ, ये दिख रहा होगा या तो नहीं दिख रहा होगा, या देख ही नहीं रहे होगे। थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जूम करो, ओके। अभी ठीक है, अपन स्क्रॉल कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं।
देखो यहाँ क्या लिखा है, पहले मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, आप समझो वो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। आई गिव यू करेक्ट 30 सेकेंड्स और देखो आपको क्या लग रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो करके देखो, अपने को करके देखना है कि ये एक्स पोजीशन होगी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इंडेक्स फिंगर के इधर जा रहा है तो इस टाइप जा रहा है, इंडेक्स फिंगर का एक्स में क्या वैल्यू होगा, उससे कंपेयर करके क्या जीरो है तो क्या वन कर दे रहे हैं, क्या वन है तो क्या जीरो कर दे रहे हैं, थोड़ा समझो एक बार। टाइम ओवर। चलो कोई एक्सप्लेन करेगा? चलो करके देखते हैं, ठीक है? सब अपना हाथ उठालो, ठीक है? अपना इतना रखना कि खुद देख पाओ, ठीक है? अभी देखो थंब है, करेक्ट, क्या लिखा है उसमें पढ़ो, एक्स पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द थंब। अभी तो मैं बोल भी नहीं सकता, भाई को पकड़ लो। ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हियर इफ यू सी, तो यहाँ पे सी, ये यू आर एबल टू सी, अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, ओके, ये y, ये x, क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर हम का जो पोजीशन है x का, वो किसके बॉटम पोजीशन ऑफ इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का x एक्सिस यही होगा, आप इसे क्लोज करोगे तो इसके पीछे चले जाएगा। अब मुझे बताओ, आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होगे तो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके हिसाब से ये आपकी जो फिंगर क्लोज कहलाएगी कि ओपन कहलाएगी, क्लोज। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल रही है कंडीशन, अगर एनी इंस्टेंस कहीं भी आप देखो कि थंब की वैल्यू 1 है एंड आपका जो पोजीशन ऑफ थंब है वो इंडेक्स फिंगर के पीछे है, तो उसे किससे अपडेट कर दो, सही बोल रहे हैं, पक्का? इसके जस्ट अपोजिट क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी थंब की पोजीशन इंडेक्स फिंगर से इधर हो, अरे ग्रेटर देन स्मॉलर समझते हैं ना सबको, राइट? नाउ यू हैव टू थिंक विद द क्वाड्रेंट, एक साइड माइनस एक्स एक्सिस है और एक साइड प्लस एक्स एक्सिस है, राइट? तो इस साइड क्या होता है, मैं अभी आप लोगों के पैरेलल हूं, ठीक है? तो इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड नेगेटिव होता है। अपने हिसाब से देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आएगा। अब लग रहा है सही लिखा है, किसी को नहीं लग रहा है बताओ, बोर्ड का यूज करेंगे, बट कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हाँ सर, अगर आपने पूरा ऐसा क्वाड्रेंट ले लिया, देन एवरी फिंगर विल हैव एक्स एंड वाई, तो आपने तो सिर्फ वाई कंसीडर करने को बोला, एवरी डिस्टिंक्ट हम के केस के लिए, हम देखो हम किस केस में चल रहे हैं, आप अगर ऐसे हाथ रखो ये एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, नहीं, लेकिन उसके पॉइंट्स है, उसको एक्स और वाई का दोनों का कोऑर्डिनेट होगा ना सर। ठीक है, चलो एक्स और वाई, इसका अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ तो इसका एक्स कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, इसका ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये ओरिजिन है। अब इसके वाई में मूवमेंट है कि इसके एक्स में मूवमेंट है, तो वाई कंपेयर कैसे करोगे, इसके एक्स में मूवमेंट है कि वाई में मूवमेंट है, तो वाई कंपेयर करोगे, जिसका जो चीज चेंज हो रहा है वही तो कंपैरेटिव है ना। अगर एक चीज कांस्टेंट में कर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, तो ये मतलब देखो बहुत छोटा सा, आपकी बात भी मैं एग्री कर रहा हूँ, बट थिंग इज बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा वाई में, जो कि शायद मशीन को समझ लेना बहुत कठिन है, बट उसी के पैरेलली इफ वी कैन टेक अदर ऑप्शंस, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हम के केस में एक्स एक्सिस, क्योंकि इट्स मूवमेंट इज इन एक्स एक्सिस। डू वी ऑल एग्री? क्लियर है सर? नहीं है बताओ, डिस्कशन करेंगे, इसीलिए तो है 0 1 काउंटिंग है, आपके पास एक ही थंब है या तो 0 थंब है, राइट?
चार दो नेस्टेड इफ है। हाँ, दो नेस्टेड है, राइट। जो ऊपर वाला नेस्टेड इफ है वो ये कंडीशन है और जो नीचे वाला नेस्टेड है वो ये कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले कंडीशन में हम एक चीज अपडेट करें। ऊपर वाला जो नेस्टेड है वो ये कंडीशन है, नीचे वाला है वो ऊपर वाला जो है, राइट, ये कंडीशन नीचे वाला ये कंडीशन। करेक्ट। तो इस केस में कम काउंट होना चाहिए फाइनल काउंट। हाँ, राइट। तो सेकंड केस में हाँ, राइट। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। सेकेंड में क्या बोल रहा हूँ, ये कंडीशन, राइट। हाँ, वो जो जीरो कैसे हम जो है इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। ये कंडीशन नहीं, इसमें मेरे ख्याल से कंडीशन ये नीचे वाले में, ऊपर वाले में क्या कंडीशन है, वो पूछ रहा है कि हम आपका अगर 1 है, राइट, अगर हम की वैल्यू अगर आपको 1 दिख रही है, ठीक है, मतलब वेरिएबल है, हम इज अ वेरिएबल, ठीक है, अगर हम की वैल्यू 1 दिख रही है और कंडीशन ऊपर वाली है तो उसे अपडेट करो। अगर ऐसी वाली कंडीशन नहीं तो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे हम उसको। और ये उसके जस्ट अपोजिट है कि अगर आपको थंब की वैल्यू 0 दिख रही है, राइट, तो उस केस में ये अपडेट करना है। अगर ऐसे रखा है और कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये 1 काउंट ही होगा। सेकंड केस में हम की वैल्यू हम अगर 0 है, राइट, अगर मैंने हम की वैल्यू 0 है, हम 0 नहीं है, हम तो ऐसा है, तो अगर हम 0 है, अरे सॉरी, रुको, वेरिएबल जो है ना वो हम चेक कर रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन इधर है, ओरिजिनल पोजीशन जो है वो ये कहना चाहिए, ये ओरिजिनल पोजीशन है, वो हम उसकी अपडेशन के लिए उसे चेक कर रहे हैं वेरिएबल को। क्योंकि अब आप जब नंबर चलाओगे तो कभी ऐसे रखोगे, कभी ऐसे रखोगे, कभी ऐसे रखोगे, कभी ऐसे रखोगे, तो बाई चांस हो सकता है कि आपने ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा और फिर ऐसे कर दिया, राइट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन है, वो इंटरनली वैल्यू चेक करेगा। आपने ऐसा रखा, समझ लो ये ऐसा रखा, अभी इसकी क्या वैल्यू है, हम की वैल्यू 1, तो अभी ये काम की वैल्यू अगर 1 है और इसके बाद मैं ऐसा कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी ना मुझे, तो वो अपडेट मैं करता हूँ। ओरिजिनल पोजीशन ये है, ओरिजिनल पोजीशन ये है, ये अपडेशन चेक हो रहे हैं कि पुरानी वैल्यू में क्या था तब में। अभी आपको थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने थंब से स्टार्ट किया। मैं आपको इसका पूरा प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, सिर्फ ये है लेस विद द टाइम। हम लोग इसको कर भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। मैं ये इसको कैसे कंप्लीट करना, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ये उसका मेन लॉजिक है, ठीक है। मेन लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, पिंकी के फाइनल वैल्यूज निकाल रहे हैं और वो शो कर रहे हैं। अब इसमें अपने बीच में देखो सबके अलग अलग फंक्शन तो हैं मैंने काउंट करने के, और क्या कर रहा हूँ मैं, सबको अपडेट कर रहा हूँ पैरेलली को भी। ये देखो सबको पैरेलली, ये किसको अपडेट कर रहा हूँ, इंडेक्स भी कर रहा हूँ। तो देखो इंडेक्स अगर 0 है और उसकी पोजीशन ऐसी है अपडेट दैट टू 1। Similarly, I am like updating the value of middle finger, I am updating the value of ring, pinky and the thumb। अब यहाँ पे ये चलता रहेगा पैरेलल प्रोसेसिंग में, मतलब मैं एक बार ये एक साथ पांचों फंक्शन कॉल होंगे, करेक्ट। अपनी वैल्यूज यहाँ पे ये चेंज करते रहेंगे, कभी थंब 1 हो जाएगा, कभी इंडेक्स 1 हो जाएगा, कभी कुछ 1 हो जाएगा, कभी कोई 0 हो जाएगा। 0 और 1 के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि यहाँ कहीं एडिशन वाला कुछ हो ही नहीं रहा, राइट। 1 है तो 1 ही रहेगा। अब फाइनल में जो है इसको ऐड करके मेरे को आंसर मिलेगा, राइट। तो वो जो आपने देखा जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट है, तो उसमें बेसिकली जो नीचे वाला पार्ट था, लाइक अगेन आई जस्ट ब्रिंग दिस, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें जो ये वाली चीज है ये इसकी ओरिजिनल है, और ये आप चेक कर रहे हो विद द प्रीवियस, क्योंकि आप देखो ये अगर मैं आपको लेके जाऊँ पिंकी पे, तो देखो पिंकी में आपने थंब को रखा हुआ है, पिंकी में आपने थंब रखे हुए हैं, बाकी सारी फिंगर्स भी रखी है।
आप वहाँ क्या सिर्फ एडिट कर रहे हो सिर्फ पिंकी, बट यहाँ पे भी तो हो सकता है थंब की वैल्यू चेंज हो जाए, इसमें तो शो ऐसे भी तो शो कर सकते हो। तो इसमें तो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग होना चाहिए ना, कि पिंकी भी अपडेट हो थंब भी, पिंकी के फंक्शन में तो सिर्फ पिंकी होगी, राइट। तो हम को करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने एक फंक्शन बनाया है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लाइक आई विल जस्ट ट्राई टॉक कि क्या किया जा सकता है, so we can have a time again and we can discuss it. अभी जो थोड़ा बहुत समझ आया, कंसेप्ट समझ आया, लिखा कैसे वो हम लोग देखेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये वर्क कर रहे हैं, उसका भी आप टेंशन मत लो, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। जस्ट कि आपको अभी तक जो समझ आया ये आपको कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ये इशू क्यों आता है? क्योंकि अगर आपका कैमरा कहीं और भी चल रहा होगा तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं और जहाँ भी कैमरा चल रहा है वो एप्लीकेशन रन करनी पड़ेगी और इसे स्टॉप करके वापस से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, वन और टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम उसकी लॉजिक किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, एंड मेन आइडिया यही है कि हम अपडेट कर रहे हैं वैल्यू। तो पैरेलल आप जब 5 चीज़ों को वेरिएबल्स पे एक साथ वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको, मैं इसीलिए आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट उसको समझने से पहले ट्राई एंड गिव अ लिटिल टाइम इन पेन एंड पेपर, ठीक है। आप घर जा रहे हो, आपने जो भी प्रोग्राम सीखा उसे पेन पेपर से समझो, ये वेरिएबल का यहाँ से अपडेट हुआ है। ओके, so as of now I will like close this lecture. I will like try to come back to you on these topics. So till now, thank you.